روہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ملتان کے علاقے ڈبل پھاٹک چوک پر واقع شہباز شریف پارک خستہ حالی کا شکار۔ پارک میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں، دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض۔ ملتان کی ضلع انتظامیہ کے ترقیاتی کاموں کے دعوے ٹھوس۔ ڈبل پھاٹک چوک پر واقع شہباز شریف پارک انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث خستہ حالی کا شکار۔ پارک میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں۔ پارک کی خوبصورتی کے لیے بنائے گئے فوارے کے ساتھ رکھے گئے بینچ بھی غائب ہو چکے ہیں۔ بڑے خوش تھے اس پارک سے، لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا ہے اس کے جو نہ اس میں کوئی مالی ہے، نہ کوئی اس کا کوئی وہ چوکیدار ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق شروع میں تو پارک کی دیکھ بھال کی جاتی تھی، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ پارک کی حالت بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ سے کئی گزارش کی گئی، مگر کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ کوئی مالی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ ٹینکی ویسے بچا ہوا ہے، ٹینکی نہ ہوتی کبھی کا سوکھ جاتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پارک کی حالت بہتر بنائی جائے تاکہ انہیں تفریح کے لیے جگہ میسر آ سکے۔ کیمرمین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے انڈسٹریل اسٹریٹ کو ملانے والی اہم شاہراہ چائنا چوک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کاروباری شخصیات کے مسائل بڑھ گئے ہیں، سامان کی ترسیل میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں امجد ملک اپنی رپورٹ میں۔ ملتان انڈسٹریل اسٹیٹ کو ملانے والی اہم سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مظفر گڑھ بائی پاس سے چائنا چوک تک سڑک کی بری حالت ہے۔ تاجروں کو سامان کی ترسیل میں مشکلات کا سامنا، دھول مٹی اور گڑھوں کی وجہ سے آمد و رفت شدید متاثر ہے۔ یہ سڑک 2 سال سے ٹوٹی، اس کو نہ تعمیر کیا جا رہا نہ کچھ کر رہے ہیں، کوئی بندہ یہاں نہیں آ رہا۔ ووٹ لینے کے لیے سارے آ جاتے ہیں، بنانے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا۔ روڈ ٹوٹا ہوا ہی ہے، ہم ریڈی لے کر آتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا سامان بھی گر جاتا ہے، تو آپ انتظامیہ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی جان اس روڈ کو جلد سے جلد بنوائیں۔ وائس چیئرمین انڈسٹریل اسٹیٹ بورڈ میاں راشد اقبال کا کہنا تھا کہ کاروباری لحاظ سے یہ سڑک اہم ہے۔ ٹوٹ پھوٹ کے باعث کنٹینروں اور ٹرکوں کی روانی شدید متاثر ہے۔ اب 2 کروڑ سے زائد فنڈ اس روڈ کی تعمیر کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ انڈسٹریل اسٹیٹ بورڈ جلد ٹینڈر جاری کرے گا۔ کراچی کی طرف سے یا لاہور کی طرف سے ہیوی ٹریفک آتی ہے، ٹرک آتے ہیں، ٹرالے آتے ہیں، وہ ان سب کے لیے یہی ایک راستہ ہے، اور چونکہ سڑک کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اس وجہ سے یہ آدھا کلومیٹر گزرنے کو ہی آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ لگ رہا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں ان کو بھی، اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ میں ان کو بھی۔ تاجروں اور شہریوں نے اس اہم سڑک کی فوری تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عظیم شہزاد کے ساتھ امجد ملک، روہی، ملتان۔ شہر اولیا کے باسیوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ تغلق ٹاؤن پھاٹک پر فلائی اوور کے لیے اسکیم تیار کر لی گئی۔ وہاڑی چوک سے اندرون ملتان، پاک گیٹ، حرم گیٹ جانے والوں کو آسانی ہو گئی۔ اب تغلق ٹاؤن پھاٹک پر انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ طیب سیف کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں تغلق ٹاؤن، پرانا وہاڑی روڈ اور اندرون کے باسیوں کے لیے اچھی خبر۔ محکمہ ہائی ویز نے تغلق ٹاؤن پھاٹک پر فلائی اوور بنانے کی اسکیم تیار کر لی۔ 2 لائنز پر مشتمل فلائی اوور 1.25 کلومیٹر لمبا ہوگا۔ منصوبے پر 1 ارب سے زائد لاگت آئے گی۔ زمین کی خریداری اور دیگر اخراجات بھی منصوبے میں شامل ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ فلائی اوور جتنا جلدی مکمل ہو اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ یہاں پہ جس ٹائم بند ہوتا ہے تو گھنٹہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اتنی دیر میں دوسری گڈی کا جو ہے ٹائم ہو جاتا ہے، عوام بہت پریشان ہوتی ہے۔ فلائی اوور بن جائے تو بہت اچھا ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ پھاٹک بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، جس سے کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ پھاٹک ابھی کھلتا نہیں ہے تو دوسری ٹرین آ جاتی ہے، اسی اسنا پھاٹک پھر بند ہی رہتا ہے۔ تقریباً ہم جتنے بھی یہاں پہ دکاندار ہیں سارے اس پھاٹک کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایکسین ہائی وے ہمایوں مسرور کا کہنا تھا کہ منصوبے کا فائل ورک مکمل کر لیا گیا ہے، آئندہ مالی سال میں کام شروع کر دیا جائے گا۔ اسکیم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تجویز پر تیار کی گئی ہے۔ فلائی اوور بننے سے جہاں پر لوگوں کو سفر میں آسانی ہوگی، وہیں پر پھاٹک کی بندش کے باعث ان کا گھنٹوں انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ طیب سیف، ملتان۔ کہروڑ پکا کے وارڈ نمبر 23 میں سیوریج کے ناقص انتظامات گلی محلوں میں گندے پانی کے جوہر لگ گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا انوکھا احتجاج سامنے آیا ہے، گندے پانی میں چیف آفیسر کا آشیانہ بنا دیا۔ کہروڑ پکا کے وارڈ نمبر 23 میں ناکارہ سیوریج سسٹم کے باعث گلی محلوں میں گندا پانی جمع ہو گیا۔ علاقہ مکینوں نے انوکھا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، گندے پانی میں چیف آفیسر کا آشیانہ بنا دیا گیا۔ شہریوں کا چیف آفیسر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہنا ہے کہ گندے پانی کے باعث آلودگی اور تعفن پھیل رہا ہے، بچے بڑے مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ گندا پانی گلیوں میں جوہر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ چیف آفیسر کو متعدد مرتبہ درخواست دی گئی، مگر علاقے کے سیوریج نظام پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔
चीफ ऑफिसर 2 मरतबा इस मोहल्ले का विजिट करके खामोशी इख्तियार कर चुके। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा कैप्टन मोहम्मद शुएब से सीवरेज सिस्टम ठीक करने का मुतालबा किया। मियांवाली इंतजामिया की नाअहली मुस्लिम कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। जगह जगह गंदगी के ढेर, सीवरेज मसाइल और सड़कें भी टूट फूट का शिकार। शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली की वाहिद सरकारी कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। मकीन, गैस, पार्क और स्कूल जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अहले इलाका का कहना था कि 1973 में कायम होने वाली मुस्लिम कॉलोनी अभी तक गैस से महरूम है। कई मकामात पर सीवरेज का पानी जमा है, जबकि सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। 73 में बनी थी, अभी तक इसमें ना हाउसिंग का 1 रुपया खर्च हुआ है और ना ही गवर्नमेंट का। अभी महकमा हेल्थ की तरफ से हमें कुछ गटर वगैरह बनाकर दिए गए हैं। मकीनों का कहना था कि बाज़ औकात गंदे पानी के बायस मस्जिद जाना भी मुश्किल हो जाता है। बारिशी पानी सड़कों पर हफ्तों जमा रहता है। स्ट्रीट लाइट का तो दूर दूर तक निशान नहीं। फेज 2 की हालत तो फेज 1 से भी अबतर है। सीवरेज और सड़कें बहुत बुरी हालत है जी। बारिश के दिन हम मस्जिद तक नहीं जा सकते, और इमरान खान की हुकूमत में अभी हमें अगर ये सहूलत न हो तो फिर कब होगी। अहले इलाका ने जिले इंतजामिया से फौरी तौर पर मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। वासा मुल्तान की नाअहली शाह अम्बाला मोहल्ले का सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया। ताफून के बायस बीमारियां फैलने लगी हैं। अहले इलाका मुश्किलात से दो चार हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान शहर के फैजी रोड को लगने वाला चा अम्बाले मोहल्ले के सीवरेज सिस्टम बैठ गया। गटरों के पानी के बायस बीमारियां फैलने लगी। गटर बंद है, घरों में पानी जाता है। हमें इतनी परेशानी है कि हम कुछ आपको बता नहीं सकते। जब पानी भरा होता है, कपड़े खराब, नमाज के लिए हम जा नहीं सकते। हमारे लिए तो बहुत मसला है। इलाका मकीनों का कहना था कि वासा वाले आते हैं, पैसे लेकर चले जाते हैं। शाम को गटरों का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। असा बहुत सारे परेशान है। मेरा बच्चा, सारे बच्चे कपड़े पलीत हो वेंदे, सब घर अंदर जुतियां भरी वेंदियां, जेड़ा मेहमान आता है, बच्चे आते। अहले इलाका ने इंतजामिया से मोहल्ला अम वाले का सीवरेज सिस्टम बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान घंटाघर चौक में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए बबाले जान बन गईं। उलझी हुई तारों से शहरी खौफजदा रहने लगे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 बार आग लगने के वाकयात रूनमा हो चुके। सुहेब गुरमानी की रिपोर्ट देखिए। घंटाघर चौक में बिजली के लटकते तारों के बेहिंगम जाल ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दी। लटकते तार राहगीर और दुकानदारों के लिए खतरे का बाइस बन गए। कुछ अर्सा कबल 2 दफा शॉर्ट सर्किट से आग भी लग चुकी है। हमने इंतजामिया को बहुत दफा दरखास्त दी है, और ये ऐसा नहीं है कि हादसा हो सकता है, ये हो चुका है, और इसकी वजह से 4-5 दफा आग लग चुकी है। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट में तारों के बेहंगम जाल का ये किस्सा कोई नया नहीं। सूरत हाल 5 साल से ऐसी ही है, लेकिन मैप को इंतजामिया है कि टच से मस नहीं हो रही। ये जो है बाबडा की नाअहली है, यहाँ पर तारें बिल्कुल नंगी हैं। कई मरतबा कंप्लेन की है, तो किसी ने भी कोई इस पे रद्द-ए-अमल नहीं होता। जितनी भी तारें देखें आप, ये लगी हुई हैं, इनके ऊपर टेपिंग हमने इलेक्ट्रिशियन बुलवा के करवाई। अक्सर लोगों को यहाँ करंट लगता है। एसडीओ बाबडा और इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। शहरी इंतजामिया के इस रवैये से इंतहाई नाला नजर आते हैं। कैमरामैन सफीर हैदर के हमरा सुहेब गुरमानी, मुल्तान। मुल्तान रेलवे इंतजामिया की नाअहली कीमती सामान खुले आसमान तले पड़ा गलने से डर लगा है। सामान चोरी होने से खदशात भी बढ़ गए हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे मोहसिनुल मुल्क। रेलवे की बहाली कौम की खुशहाली। मुल्तान रेलवे अफसरान की नाअहली और महकमे को डबोने लगी। स्टेशन के अतराफ में कीमती सामान खुले आसमान तले फेंक दिया गया। सामान गलने, सड़ने और चोरी होने के खदशात बढ़ गए। करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा। यहाँ गंदगी है बहुत ज्यादा है। स्टेशन पे भी हर जगह मच्छर बहुत है। पार्क में भी इधर देखो जाकर सब गंद है। राहगीरों का कहना था कि सामान की वजह से कई हादसात रोनुमा हो चुके हैं, जबकि बच्चे भी खेलते हुए अक्सर जख्मी हो जाते हैं। सारा नेल में इतना धन पड़ा है, नैनो में भी, वे तनूनी में भी, चमेटिया वैसे नेल नेड़े नहीं आते। इधर डीएथ बैठा है, वे अस्पताल में डॉक्टर बैठा सीपीओ हमारा, तो ही नेड़े नहीं आता। इधर खुलेआम रखा रेलवे का कीमती सामान चोरी होने का भी खदशा है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। मुल्तान के बाबर थिएटर पर जारी ड्रामा बाबा जी जादूगरनिया में गुज़श्ता सब विजिलेंस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी। मारूफ अदाकारा ईमान शाह को एक शो के लिए बैन कर दिया गया है। मारूफ अदाकारा ने गुज़श्ता शब
मेडले में गानों की तादाद विजिलेंस कमेटी की इजाजत के बगैर बढ़ाई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए एसी हेडक्वार्टर आफ्ताब डोगर ने अदाकारा को एक शो के लिए बैन कर दिया है। अदाकारा को एक शो के लिए बैन कर दिया गया। मुल्तान के बाबर थिएटर पर जारी ड्रामा बाबाजी जादूगरनिया में गुज़श्ता शब विजिलेंस ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी, मारूफ अदाकारा ईमान शाह को एक शो के लिए बैन कर दिया गया। मारूफ अदाकारा ने गुज़श्ता शब मेडले में गानों की तादाद विजिलेंस कमेटी की इजाजत के बगैर बढ़ाई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए एसी हेडक्वार्टर आफ्ताब डोगर ने अदाकारा को एक शो के लिए बैन कर दिया। इत्तका ऑर्गेनाइजेशन खत्म होती रिवायत को जिंदा रखने के लिए मुत्तहिद, कहानियां सुनने और सुनाने के लिए मुल्तान टी हाउस में कहानी घर का इनकाद किया गया, जहां बच्चों समेत इत्तका ऑर्गेनाइजेशन के सदर ख्वाजा मजहर सदीकी, डायरेक्टर महकमा ताल्लुकात आमा सजाद जहानिया, कालम निगार शाकिर हुसैन शाकिर समेत मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुराने वक्तों में बच्चे नाना नानी से, दादा दादी से, अम्मा से लोरियां और कहानियां सुनते थे। मीडिया ने, चैनल्स ने, टैब ने, कंप्यूटर ने, मोबाइल ने, स्मार्टफोन ने बच्चों से कहानियों का दौर छीन लिया है। कहानी घर में बच्चों ने टैबलोस पेश करके सबका इस्तकबाल किया। किसी ने इस्लामी किस्से सुनाए तो किसी ने स्नो वाइट की कहानी सुनाई। कई बच्चों ने सराइकी में भी कहानियां सुनाई। अच्छा सलामत, ना मुझे बंगले की जरूरत है और ना ही दौलत की, आप तो बस मेरी तालीम का इंतज़ाम करा दीजिए। इस पर बादशाह बहुत खुश होता है और वो उसकी उम्दा तालीम का इंतज़ाम कराता है। वो लड़का बहुत मेहनती होता है, वो दिन रात एक करके पढ़ता है और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनता है। समाजी कारकुन साइमा का कहना था कि कहानी घर में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। बच्चे कहानियों के जरिए किताबों से मोहब्बत और अच्छे और बुरे के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। जनूबी पंजाब के शहरियों की खास पसंद जलेबी है। सर्दियों में इसकी मांग में और भी इजाफा हो जाता है। मुनफरिद जायके से भरपूर जलेबी किस तरह से तैयार की जाती है, जानते हैं कासिम अली शेख की इस रिपोर्ट में। मीठा सबकी पसंद है। बाजार में अनवाउ अक़साम की मिठाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन शहरी जलेबी ज्यादा पसंद करते हैं। खास तौर पर जनूबी पंजाब के दही इलाकों में तो जलेबी की मांग बहुत ज्यादा है। माशाल्लाह इनके जैसी जलेबी पूरे बावल नगर में नहीं है। आप यकीन करें, आप भी यहाँ विजिट करें, जो देख रहे हैं। और माशाल्लाह हम घर के लिए भी लेके जाते हैं और दिन रात मतलब रात के टाइम भी इस्तेमाल करते हैं। और उनकी तरह मतलब और बहुत भी दुकानें, मगर यहाँ की बस सबसे बेस्ट जलेबी है। जलेबी की तैयारी में मैदा, चने की दाल, मीठा सोडा, चीनी और खालिस घी इस्तेमाल किया जाता है। मैदे और चने की दाल का आटा तैयार करके इसे मखसूस कपड़े की बनी थैली में डालकर पकते हुए घी में दायरे की शक्ल में बनाकर फ्राई किया जाता है। इसके बाद चीनी के बने शीरे में कुछ तेल डालकर निकाल लिया जाता है। इस तरह गर्मा गर्म खुश जायका जलेबी तैयार की जाती है। जलेबी का हम काम करते हैं, 30 साल से मैं जलेबी बनाता हूँ इधर, और बहुत मशहूर जलेबी है। बहुत दूर दूर से लोग जलेबी खाने के लिए आते हैं। खास तौर सर्दी के अंदर ज़्यादा जलेबी चलती है मेरी। इसके अंदर मैं चने का आटा डालता हूँ, माश की दाल होती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मैं अकेले मैदे की नहीं बनाता, आपने बहुत सी जलेबियाँ खाई होंगी। इंशाल्लाह मेरे पास ज़रूर ट्राई करिए आज। बहावन नगर में मौसम सरमा का आगाज होते ही जलेबी की मांग बढ़ जाती है। शहरी इसे दूध में डालकर शौक से खाते हैं, जबकि चाय के साथ दोस्तों को भी पेश की जाती है। बहावल नगर की मशहूर सौगात ये जलेबी है और बाकी मिठाइयों में इसे एक अलग मकाम हासिल है। और मैं बहावली चौक छोड़कर यहाँ से लेने आया हूँ, हालांकि वहाँ भी रेडियाँ हैं कई, लेकिन इस भाई की काफ़ी जो है मशहूर है बहावल नगर में जलेबी। जलेबी जहाँ मुनफरद जायका और लज्जत से भरपूर होती है, वहीं दीगर मिठाइयों की निस्बत काफ़ी सस्ती भी है। जलेबी सब ही शौक से खाते हैं और घर भी ले जाते हैं। मार्केट में एक से बढ़कर एक मिठाई होने के बावजूद शहरी आज भी जलेबी को बेहद पसंद करते हैं और ख़ास तौर पर मौसम सरमा का आगाज होते ही जलेबी की मांग में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावल नगर। माहम मीठे की बात हो गई, अब कुछ नमकीन का जिक्र कर लेते हैं। क्या आपको मछली पसंद है? ऑब्वियसली, मछली किसको पसंद नहीं होगी, क्या आपको भी पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, मैंने तो अभी कल ही खाई है। तो नाज़रीन बात कर लेते हैं मछली की। सर्दी की आमद है और मछली की ऐसे में मांग भी बढ़ गई है। शहरी 5 दरियाओं के संगम पर वाक़े हेड पंजनद पर
मछली खाने के लिए दूर दराज से चले आते हैं। अली हसन की रिपोर्ट देखिए। मांग भी बढ़ गई। 5 दरियाओं के संगम पर दूर दराज से शहरी मछली खाने के लिए आते हैं। साफ मसाला जात से तैयार शुदा हेड पंजर की मछली पाकिस्तान भर में मशहूर है। यहाँ पकौड़ा, सिज्जी, ग्रीन फिश तैयार की जाती है। थोड़ा मौसम चेंज हुआ है तो उसके साथ ही हमने सोचा थोड़ी बहुत डाइट भी चेंज की जाए, तो इधर फ्रेश मछली मतलब अवेलेबल होती है। फ्रेंड्स के साथ आए हैं, आउटिंग भी हो जाती है और एनवायरनमेंट भी ज़रा डिफरेंट है, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ। शहरियों का कहना था कि यहाँ की मछली बहुत लजीज है, वो मछली खाकर बहुत लुत्फानंदोज हो रहे हैं। माशाल्लाह अच्छा टेस्ट दिया हुआ है इन्होंने, अच्छा म्यार दिया हुआ है, तो आप भी आए, दोस्तों को लेके आए यहाँ। माशाल्लाह यहाँ अच्छा म्यार है। एक शहरी का कहना था कि वो दोस्तों के हमरा अक्सर यहाँ आते हैं, मछली खाते हैं और हेड पंजर के खूबसूरत माहौल को भी इंजॉय करते हैं। मुल्तान से आया हूँ बेसिकली, यहाँ दोस्तों के साथ आउटिंग करने आया हूँ, तो काफ़ी अर्से बाद आया हूँ, तो मछली इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ खाने आए हुए हैं सब दोस्तों के साथ। 5 दरियाओं के संगम पर दोस्तों के साथ मछली मिल जाए तो सैर का मजा दो बाला हो जाता है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही न्यूज, अलीपुर। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज टेलीविजन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन से रंगीन स्क्रीन और एलईडी से एलसीडीज की इजादात टेलीविजन की तरक्की की नुमाया मिसाल हैं। वर्ल्ड टेलीविजन के आलमी दिन के हवाले से माजिद कलासरा की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। बोलती और भागती दौड़ती तस्वीरें एक जमाने में ख्वाब लगती थीं, लेकिन टेलीविजन ने ये ख्वाब सच कर दिखाया। तेजी से तरक्की करती जमाने में मालूमात की फराहमी में भी तेजी आई है, मगर टेलीविजन की अहमियत आज भी इसी तरह कायम है। तालीम, सेहत, बिजनेस, स्पोर्ट्स, तफरी, मौज मस्ती, ड्रामा, मौसीकी, अलगर्ज ऐसा क्या है जो इस जादुई डब्बे में नहीं। नए दौर के तकाजु ने इस डब्बे को खूबसूरत एलसीडी और एलईडी में बदल दिया है। तो शुरू में ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया। अब रंगीन टेलीविजन, फिर उसके बाद एलईडी ने उसकी जगह ले ली, तो इसका माशरे की इस्लाह में बहुत ज्यादा किरदार है। पाकिस्तान में टेलीविजन की नशरियात का आगाज 1964 में हुआ। बुजुर्गों का कहना है कि पुराने दौर के टीवी का अपना मजा था जब सब मिलकर देखते थे। टीवी आया, उस पे हम इकट्ठे हो जाते थे पूरे गांव के लोग कि क्या खबर अखबार है। सन 65 की जंग लगी, अयूब ने तकरीर की, तो हम गांव वालों ने, सब में बच्चा था तो सब ने बैठ के सुनी। तो माशाल्लाह अब तो आप एलसीडी। शहरियों का मानना था कि टीवी अवाम के मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार हर गुजरते दिन के साथ मजीद मुअस्सर बनाएगा। पूरी उम्मीद है कि जो टेलीविजन है बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, एंड आई विश कि ये इन फ्यूचर भी बहुत अच्छा किरदार अदा करते रहें। पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल की नशरियात का आगाज 1992 में हुआ। मुल्क में आजकल 150 से ज्यादा निजी टीवी चैनल ऑन एयर हैं। रोजमर्रा जिंदगी में टेलीविजन और नाजरीन का नाता जिंदगी और ऑक्सीजन से कम नहीं, क्योंकि टीवी आपको बाखबर ही नहीं रखता बल्कि फुर्सत के लम्हात में आपका बेहतरीन साथी भी है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। एक बात करेंगे तरक्याती प्रोजेक्ट की। शहरी औलिया के वासियों के लिए मेगा प्रोजेक्ट का तोहफा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सईद हवाला चौक से हेड मोहम्मद वाला डबल रोड की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। शहरी औलिया के वासियों की सुनी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब की अहम शाहराह हेड मोहम्मद वाला 2 रोया रोड की तामीर की मंजूरी दे दी। 11 किलोमीटर तवील डबल रोड पर 1 अरब 18 करोड़ से जायद लागत आएगी। डबल कैरिज रोड की तकमील से जनूबी पंजाब के अजला डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ की आवाम को बहुत फायदा होगा। गवर्नमेंट का बहुत मकसद है, शुक्रगुजार होंगे। आवाम बहुत परेशान होती है, तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना लोगों को बड़ी सहूलत होगी। काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने मंसूबे को रिकॉर्ड वक्त में मंजूर किया। शहरियों ने कहा कि साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के दौर में अहम मंसूबा बाईपास तामीर हुआ। सिंगल रोड की वजह से रोजाना की बुनियाद पर हादसात होते थे। हुकूमत इस मेगा प्रोजेक्ट को अपने दौरे हुकूमत में मुकम्मल करवाए। अच्छी बात है, सुनने में आया है, अगर बन रहा है तो अच्छी बात है। पिछले 5-6 साल से सुन रहे थे, अगर शुरू हो रहा है तो अच्छी बात है। काफी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मंसूबे पर रवा साल काम शुरू कर दिया जाएगा। काम की रफ्तार और मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। पाकिस्तान सराइकी पार्टी अलहदा सूबे के लिए मैदान में आ गई। मुल्तान के अवान चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि अलग सूबे के कयाम तक जिदोजहद जारी रहेगी। हमें रिपोर्ट करेंगे जुनैद अनवर।
पाकिस्तान सराइकी पार्टी ने लहर सूबा के लिए मैदान मार लिया। मुल्तान के आवान चौक पर एहतजाजी मुजाहिरे की क़ियादत सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी अल्लाह नवाज वैंस ने की। इनका कहना था कि हुकूमत ने अलहदा सूबे का वादा पूरा नहीं किया, मुद्दत कम रह गई है, अब तो वादा पूरा कर दे। आज दा एहतजाजी कैंप और ये धरना हुक्मराने दे खिलाफ है, इमरान खान दे खिलाफ है। जै 100 दिन का वादा किया, 1200 दिन तो ज्यादा गुजर गए, अज तक सूबा कमेटी तक नहीं बढ़ेगी। पाकिस्तान सराइकी पार्टी रहनुमा जहूर अहमद दरीजा का कहना था कि जनूबी पंजाब के लोग सेक्रेटरीट नहीं अलग सूबा चाहते हैं, सूबे के क़याम तक जद्दोजहद जारी रहेगी। असां ई सेक्रेटरीट बनाने की मुजम्मत करें। सेक्रेटरीट का मतलब है तख्त लाहौर दे बंदे भर्ती करना, क्योंकि जो अफसर है वो सारा पंजाब नाल ताल्लुक है, लाहौर तख्त लाहौर नाल ताल्लुक है, और इन्होंने एक ओपन कोटा रखा है पूरे पंजाब का, वो जेड़ी ज्यादा भी डोमिसाइल होवे और बंदा को एडजस्ट किया नहीं। एहतजाज में सराइकी पार्टी के जिला भर से कारकुनान शरीक हुए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। केहरोड पक्का में थैलेसीमिया की रोकथाम और आगाही के हवाले से मीटिंग हुई। लोधरा में थैलेसीमिया फ्री सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया। शमीर खान जोया सदर जबकि इशफाक मुश्ताक जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। केहरोड पक्का में थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए आगाही के हवाले से मीटिंग हुई। रीजनल ब्लड सेंटर मुल्तान के डिविजनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सैयद आसिम सिविल सोसाइटी और सहाफ़ी शरीक हुए। इस मौका पर जिला लोधरा में थैलेसीमिया फ्री सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया। शमीर खान जोया सदर, इशफाक मुश्ताक जनरल सेक्रेटरी, कैसर अली राना ऑर्गेनाइजर और आशिक हुसैन को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। 9 मुंतखब अहदेदारान का कहना था कि थैलेसीमिया फ्री सोसाइटी के क़याम का मकसद इस बीमारी की पेचीदगियों के मुतालिक आगाही देना है। इस हवाले से स्कूलों और पब्लिक मकामात पर सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे। थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला अफराद के जिस्म में खून नहीं बनता, उन्हें हर 15 दिन में खून लगाने की ज़रूरत होती है। इतवार के रोज शहर औलिया में खेलों के मैदान सज गए। रेलवे ग्राउंड में रश। नौजवानों का कहना था कि हफ्ते में एक दिन भरपूर खेलने के लिए मिलता है, इसीलिए सुबह से खेल रहे हैं। अली राज की रिपोर्ट देखिए। छुट्टी के दिन मुल्तान में खेलों के मैदान सज गए। नौजवानों का रेलवे ग्राउंड में रश। कहते हैं छुट्टी के रोज वो सुबह से ही खेल के मैदानों का रुख कर लेते हैं। इतवार का दिन है, संडे का दिन होता है, एक छुट्टी का टाइम होता है और कॉलेज से एक दिन की छुट्टी होती है और हम क्रिकेट वगैरह खेलने आते हैं और फुटबॉल वगैरह भी खेलते हैं। खिलाड़ियों का कहना था कि हफ्ते में एक दिन होता है जब कॉलेज नहीं जाना होता, इसलिए सुबह से खेल रहे हैं। खेल तफरीह के साथ सेहत के लिए भी जरूरी है। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जाते हैं तो टाइम नहीं होता सरगर्मी करने के लिए कोई भी, तो इतवार के दिन ही होता है। इसका बेनिफिट यह है कि हम छुट्टी होती है, सब दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं। नौजवान खिलाड़ियों का कहना था कि मुल्तान के मैदानों में सहूलियात का फुकदान है। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। जामपुर में यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम पहला इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। अलगाजी फुटबॉल क्लब ने यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब को शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली। जीत की खुशी में हामी ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जामपुर के ग्राउंड में पहला इन्विटेशन डिवीजनल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब और अलगाजी फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। शायकीन की बड़ी तादाद मैच से महसूस हुई। अलगाजी फुटबॉल क्लब डीडी खान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब जामपुर को 1 गोल से शिकस्त देकर फतह समेट ली। यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब की टीम कोई गोल नहीं कर सकी। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।